Assalamu alaikum. My name is Mohammad Irfan and I am from Indus University Department of Faculty of Engineering and Science. And today I am here for the lecture Total Quality Management. And from the starting of this lecture, in the first thing we have discussed about the combination of the three words that are coming from the total quality and management. So whatever we are starting for this, uh, first first of all we have to know about what is the total and what is the quality and what is the management on it. So in the combination of these three words, we have discussed the firstly is total. Total is called is made up as whole. Okay, कि हम तमाम उसके अंदर जितनी भी आपके अंदर एक प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू योर कंपनी टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द सर्विस इन दैट प्रोडक्ट टू योर कंज्यूमर एंड फॉर द कस्टमर्स, तो उसके अंदर जो है वो आप देख रहे होते हैं कि टोटली जो है वो आप उनको compete कर पाए. Okay, you have to see all the comprehensive and the total things on it. Okay, then the second thing we have the quality. How we can define the quality in terms of product and in terms of services. Okay, because whenever you are going to sell your things, whenever you are going to buy your things, you have two things to be sell or to be buy. The one thing is the product and second thing is the services. Okay, so the degree of the excellence, the quality is defined from the degree of the excellence of the product and the services as a customer and a buyer is buying and the customer is going for buying the goods. Okay, so degree of the excellence जो है वो हम define करते हैं for the quality कि आपकी जो भी quality आप product की आप ले रहे हैं उसकी क्या degree of the excellence मौजूद है. Okay, and the third thing we have is the management. The management is the art and the act. Okay, management is nothing a quality product. Management is the act you can perform the management with from your actions. Okay, and it is an art. Okay, so management is an art and the act to can be you can do direction, you can do planning, and you have to go the control of that direction, the planning to do it. Okay, so here I am giving to giving you the more introduction of this. Okay, so after we have on this discussion of the what is the total and what is the quality and what is the management on these things. Okay, so here we have the first definition of the total quality management. Okay, and the first definition, there's a lot of definition. There's Gravins also drive the approaches of the total quality management, but there is no any specifically definition is available in the world. Okay, the first thing that we have discussed the quality is the degree of the excellence. Okay, and why how you can complete this degree of excellence in your organization or in your company. Okay, so the things we have the total quality management is being defined as the integrated organization. The people have in the organization have the integrated goals. Okay, the integrated goals to give your whatever you are having whatever you are producing in your company. Okay, they're designed to improve the quality of the every level. Okay, at each level of your organization and each level of your company that you have making your goods and you are providing the services to your customers and you're getting the goods from your buyers and you're getting goods from your suppliers too. तो उस तमाम पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी आपके लेवल्स में जो जो आपके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. ओके, you have the process, you have a department, you have the functions in your organizations. तो उन तमाम चीज़ों के अंदर जो भी आपकी क्वालिटी लेवल्स को आप अच्छे से अच्छा कर सकें. ठीक है, देखिए इस कोर्स का नाम जैसे कि हमने लिया ना, दैट इज कॉल्ड अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. मतलब कि पूरी जो भी एक मतलब कि मेड अप एज अ वोल, मतलब तमाम जितने भी आपका एक प्रोसेस मूव हो रहा है. ठीक है, एज अ वोल अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो ये इस कोर्स का जो है ना पूरा एक मतलब कि समराइज एक सीन जो है वो आके आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, तो इसमें जो है वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं. इसके अंदर आप जो है वो चेक करते हैं कि हाउ यू कैन गेट benchmarking of your with your buyers. Okay, and how you can benchmarking with your competitors. Okay, because in this course we have to discuss specifically on quality. Okay, जब हम स्पेसिफिकली क्वालिटी की बात करते हैं तो हम जो है डिफरेंट बेंचमार्क बना लेते हैं. सो बिफोर वी हैव डिस्कस ऑन दिस थिंग, हमें पता होना चाहिए कि बेंचमार्क होता क्या है.
it is a standard, okay, it is a standard with the things of other company or other organization or the other suppliers that you are integrated with these people with your organizations. तो ये जो आपके लोग होते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ओके, ये जो आपकी कंपनीज होती हैं जिनके साथ आप जो है इंटरलिंक होते हैं टू बाय योर गुड्स, टू सेल योर गुड्स एंड टू इंटीग्रेट विद फंक्शंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ जो है वो आप बेंचमार्क बना रहे होते हैं, आप एक लेवल बना लेते हैं, आप एक आइडियल बना लेते हैं कि मेरी कंपनी जो है इस बेंचमार्क तक जो है वो इनके साथ जो है वो compete करेगी, ओके. This is not for the certain thing, this is not for a particular thing you are getting to these the benchmark that you are talking about, but you have to be reach of that standard that you have been मतलब कि आप किसी भी कंपनी को, ऐसे हम FMCG की बात कर लेते हैं, ठीक है. FMCG कंपनी इज द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वी हैव Procter and Gamble, वी हैव Unilever, ठीक है. इस तरह आपके पास कोई आप एक कंपनी बनाने से हम वाइटल टी की बात कर लेते हैं, ओके. वाइटल टी आल्सो कमिंग फॉर द FMCG, दे हैव द डाइवर्सिफाइड गुड्स विद starting with the Pioneer, with they are starting with the tea, and now they have a diversified goods with a lot of more goods and services they are entering in their organizations, in their company and the product lines. तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक FMCG की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ओके. तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो किसको अपना बेंचमार्क बना रहे होंगे, दे आर बेंचमार्किंग टू द हमारे पास जो कंपनीज जो डिफरेंट जो वेल नोन कंपनीज हैं, ठीक है, दैट इज़ अ Procter and Gamble, एंड उसके साथ जो है यूनिलीवर. अब यूनिलीवर को जो है वो उन्होंने बेंचमार्क बनाया, दे आर नॉट कम्पीटिंग द पर्टिकुलर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या है कि वो उस तक पहुंचने के लिए आइडियली अपने आप को उस तक लेके जाने के लिए जो है वो ये तमाम चीज़ जो है वो कर रहे होते हैं, ओके. सो आफ्टर द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वी हैव द अडॉप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपको जो है जो भी क्वालिटी की मैनेजमेंट आपकी कंपनी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ओके, यू हैव टू बी गेट दैट एडॉप्शन टू योर कंपनी एम्प्लॉयज and that adaptation to your company processes, okay, because we know that every people in the world resist the change, okay, and the quality management is the thing that you have to be give a more efficient to your functions, and the more efficient to your production line, and the more efficient to your services. Let's take example of that we have discussed before in the lecture too, the example of Unilever. In the Unilever, they are starting with the SAP. The SAP is a software we have to integrate with all the other suppliers and the buyer in the world. They have a requirement because all the big companies and all the big organizations are giving their orders, giving their whatever they have to be discussed with their buyers and the suppliers to the things, okay. तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो किसके ऊपर जा रही हैं, सैप के ऊपर जा रही हैं, ओके. तो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, दे हैव टू बी गेट दैट जो भी उनका जो है वो एक कंपनी का जो एक फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शंस को दे हैव टू बी चेंज देयर फंक्शंस, ओके. तो वो जो चेंज इस कंपनी के अंदर आता है, ठीक है, उस चेंज की वजह से जो है वो उस कंपनी के जो लोग मौजूद होते हैं, दे हैव टू अडेप्ट दैट चेंज. लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इनहेरेंट ऑफ दिस आवर ह्यूमन बीइंग के हम जो है वो चेंज को resist करते हैं, ठीक है. तो इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वी हैव टू इम्पोज विद ऑल द थिंग्स द फंक्शन दैट हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि ये एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात नहीं हो रही होती, ओके. हम इंट्रोडक्शंस की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपसे जो डिस्कशन हो रही है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि ये आप किसी एक, अगर TQM की बात करते हैं, इट्स नॉट फॉर अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट फॉर अ सर्विसेज. ये आपका जो HR डिपार्टमेंट होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके लोग होते हैं, जो आपके फंक्शंस होते हैं, जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो एज अ इंटीग्रेटेड जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काम कर रहे होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन बोला ही इसलिए जाता है कि उसके अंदर जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, जितने भी फंक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो कम्युलेटिव काम कर रहे होते हैं, ठीक है, टू अचीव अ सर्टेन गोल. एक कंपनी का गोल है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी, इसका एक पर्टिकुलर गोल है कि हमने स्टूडेंट्स को जो है वो
मतलब कि उनको पढ़ाना है, ठीक है, उनको जो है वो हमने लेक्चर प्रोवाइड करने हैं। तो इसकी वजह से पूरी जितनी भी कंपनी के अंदर और एडीपी डिपार्टमेंट है, यू हैव द एचआर डिपार्टमेंट, यू हैव एडमिन डिपार्टमेंट, यू हैव द आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी लोग हैं, ये एक कम्युलेटिव गोल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, ताकि हमारा जो है वो पर्टिकुलरली हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमने जो है वो स्टूडेंट को जो है वो लेक्चर डिलीवर करना है, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिलीवर करनी है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि हम जो है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर गोल होता है, उस गोल की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। तमाम जितने भी लोग होते हैं, दे आर अप्रोचिंग टू दैट गोल। ओके, so in the characteristic we have the closer customer relationship and the closer provider relationship। देखें, जब भी आपकी कंपनी के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप इम्पोज कर देते हैं, तो you have the characteristic के you have to get a closer relationship with your customers and the closer relationship with your provider। what you are the processor, you are the company, you are the organization to giving the goods to your customer and getting the raw material from your provider or your suppliers। जब आप लोग आपस में इंटीग्रेट रहेंगे, जब आप लोग आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जब आप लोग आपस में अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले मसाइल हैं वो शेयर करेंगे आपस में, तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो गैप आ जाता है इन बिटवीन द कंज्यूमर एंड बिटवीन द योर सप्लायर्स, उस गैप को आप ख़त्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट गैप? दिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, होता क्या है, एवरी वन वट एवर यू आर गोइंग टू बाय द गुड्स, यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन इन योर माइंड्स। ओके, आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, आपको पता होता है कि मैं जो हूँ वट आई एम गोइंग टू बाय द थिंग्स। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यू आर बाइंग टू गो टू बाय अ लैपटॉप। ओके, आप एक लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आप जो है उसकी स्पेसिफिकेशन अपने जो है माइंड पर रख लेते हैं। यू हैव टू नो आई वांट टू बाय i7 लैपटॉप। ओके, आई गो फॉर द HP, आई गो फॉर द डेल, ठीक है, मैं जो हूँ अपना मैकिनटॉश की तरफ जा रहा हूँ, आई बाय आई शुड अबाउट मैकबुक, ठीक है। आपकी एक सर्टेन पर्टिकुलर जो है वो एक स्पेसिफिकेशन आपके पास होती है, और दैट स्पेसिफिकेशन यू आर गिविंग टू द पीपल हु आर गिविंग यू द गुड्स, ठीक है। जो गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहे थे, आप उनको स्पेसिफिकेशन जो है वो बता देते हैं, मुझे इस तरह की जो है वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये जो गैप इन बिटवीन आ जाता है, ठीक है, जो आपको स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली नहीं मिलती है, और आप वो जो नॉलेज जो है वो अपने आपके जो भी सप्लायर्स हैं, आप उनके पास उस नॉलेज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हेनेवर यू आर इम्प्लीमेंट द TQM टू योर ऑर्गेनाइजेशन और योर सिस्टम, तो वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देता है। इस प्रॉब्लम को जो है वो मतलब कि कम से कम और करने की कोशिश करता है, जब आप सिस्टम को जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज दिस द SAP। आई ऑलरेडी बिफोर डिस्कस इन द फ्यू मिनट्स बिफोर कि हमने जो है वो SAP को जब इम्प्लीमेंट किया, व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर, दे हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको तमाम चीज़ें पता होती हैं कि आपकी कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, आपको तमाम चीज़ें पता होती हैं इस प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, आपको वो तमाम चीज़ें पता होती हैं कौन कौन सी जो है वो मोर आपको जो है वो प्रोडक्ट की लाइन को स्पीड अप करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको SAP सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो इंटीग्रेट के थ्रू आपको पता चल रही होती है। दैट व्हाट वी हैव डिस्कस हियर, द क्लोजर कस्टमर रिलेशन and the closer provider relation। That's benchmarking already discussed। What is the employee empowerment and flexibility of the product? अब दो चीज़ों पे बात कर लेते हैं characteristic। फर्स्ट थिंग इज empowerment, ठीक है, employee empowerment, and the second thing is flexibility of the production। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जब भी आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं, ओके, दे हैव द फ्री ऑफ माइंड दैट उनको जो है कोई भी हर्डल्स आएंगे, ठीक है, उनकी जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे, या इसके अलावा कोई भी इस तरह का कोई जो है वो प्रेशर आपके एम्प्लॉय के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये कब कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है? ये उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है जहाँ के जो ओनर्स होते हैं, दे हैव अ लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक ऑन इट। तो हमारे जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप का भी जो है एक बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पोजली जो है वो एक मतलब कि इम्पैक्ट इस चैप्टर के अंदर और इस कोर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आपको कोर्स आउटलाइन में भी जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखेंगी कि वी हैव डिस्कस अबाउट अ फुल चैप्टर ऑन द लीडरशिप, हाउ द लीडरशिप इम्पोज द थिंग ऑफ 2QM।
जिस कंपनी के अंदर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, जिस कंपनी के ओनर्स, जिस कंपनी के मैनेजर्स, मतलब जो आपके टॉप लाइन मैनेजमेंट होती है, उसके अंदर लीडरशिप का जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, तो वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है, दे आर मोर एम्पावर, ओके, दे हैव डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप फेसबुक देख लें, ठीक है, फेसबुक के जो ओनर हैं आप जेफ बेजोस देख लें, ही इज़ ऑनर ऑफ अमेजॉन, ठीक है, ही हैज़ अ वेरी गुड लीडरशिप प्रैक्टिसिंग ऑन इट। तो उनकी कंपनीज आप जाके देखें, आप गूगल के ओनर को देख लें, ठीक है, उनकी कंपनीज में आप देखें, वहाँ पे दे डोंट हैव द प्रॉब्लम विद देयर एम्प्लॉयज, व्हाट आर यू हैव वेयरिंग, व्हाट आर यू हैव कमिंग टू योर ऑन टाइम और यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम योर ऑफिस, दे हैव टू कंसर्न विद द वर्क, ओके, उनका काम जब तक पूरा हो रहा है, दे हैव नो प्रॉब्लम। सो व्हाट दे हैव टू गिव द एम्पावरमेंट टू देयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय भी अपनी जो है वो फुल 100% जो है वो आपका आउटपुट देके आपको जो है वो आपकी कंपनी को, जैसे हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास पर्टिकुलर सर्टेन गोल होता है जिसको हम अचीव करना चाह रहे होते हैं, ऑलराइट। तो जो आपकी कंपनी के जो लोग हैं, अगर आप उनको एम्पावर करेंगे, तो दे हैव टू गिव देयर 100% टू get their achieve their goal on the time and the specifically, okay. So after we have the flexibility production, that's the most important thing, okay. In nowadays, you know, everything is unexpectable in this world, okay. आपको जो है पहले से जो है वो तमाम चीज़ों को मेकअप करके रखना पड़ता है, पहले से आपको तमाम चीज़ों को जो है वो सेटअप करके रखना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट विद योर एटीट्यूड, द फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट विद योर what I say, this flexibility more important of the production line too. मतलब कि इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंपनी, यू हैव मेकिंग द गुड्स, ओके, और आप जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ बना सकते हैं, ओके, एंड यू गेट द ऑर्डर्स विद योर कस्टमर्स, ओके, और आपने जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी से आपने ऑर्डर ले लिया और उस कंपनी ने आपको बोला है कि मुझे जो है 5000 यूनिट्स जो है वो आपने मुझे बना के देने, ठीक है, पर डे, और आपकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन है 4800 यूनिट्स, आपने 5000 यूनिट्स का जो है वो ऑर्डर ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो मशीन टाइम है, ठीक है, मशीन टाइम इज द वर्किंग टाइम ऑफ योर कंपनी, द वर्किंग टाइम ऑफ योर प्रोडक्शन लाइन, ओके, तो आपको जो मशीन लाइन है वो आपका कंटिन्यू जो है फुल होल डे जो है वो चल रहा है, ठीक है। What you have done, you have did not do for the future, आपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। उनके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आई टोल्ड यू कि आपको कम्युलेटिव जो है वो आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है, ओके, आपको जो है देखना पड़ता है कि आप अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ओके, और आपकी कंपनी आगे किस तरह जो है मूव ऑन हो सकती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू, ओके। तो हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि अगर आप 4500 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, या 4800 यूनिट्स बना रहे हैं, या कैपेबिलिटी आपकी 5000 यूनिट्स की है, तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपका मशीन टाइम जो है वो पूरे दिन का जो है वो वर्किंग पे कन्वर्ट हो चुका है और आपने जो है वो और बाकी चीज़ें जो है वो मूव ऑन नहीं की। आपने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर और इस तरह की मशीनरीज को एडअप नहीं किया। तो व्हाट यू विल गेट, आपको जो कोई और ऑर्डर आएगा, ठीक है, या उस कंपनी से जो है डेफिनेटली स्टार्टिंग यू हैव द ट्रायल ऑर्डर्स, ओके, वो आपको सिर्फ चेकिंग ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, तो अगर आप उसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपके जो है ऑर्डर को और बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आपके ऑर्डर को और बढ़ाया जाता है तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके अंदर उस ऑर्डर को अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो भी आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आप जो है कोलैप्स कर जाएंगे। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑन योर हर प्रोसेस के अंदर, ठीक है, हर प्रोसेस के अंदर आपको जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके अंदर एक रेंज मौजूद होनी चाहिए प्लस एंड माइनस की साइड पे, ठीक है, कि अगर जो है मेरी कंपनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है और मैं जो हूँ बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर रहा अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो फिर भी मेरी कंपनी जो भी हम लोग जो है उसको किस तरह कम्पीट कर सकते हैं फॉर लास्टिंग 5 to 6 7 मंथ्स, ठीक है, कि उस बिटवीन हम जो है वो एग्जामिन कर लें अपनी जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, उसको किस तरह जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हर चीज़ के अंदर मौजूद होनी चाहिए, आपकी एम्प्लॉयज़ के अंदर ही मौजूद होनी चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट है, उस एचआर डिपार्टमेंट में से एक बंदा मौजूद है, एक एम्प्लॉय मौजूद है, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय बीमार हो गया या एम्प्लॉय
एम्प्लॉय वो छोड़ के चले गया आपकी कंपनी को, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू नथिंग, ओके, यू हैव नॉट अ फ्लेक्सिबल थिंग्स विथ यू। तो आप क्या करते हैं अपनी कंपनी के अंदर हर जगह, मैंने आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर की चीज बात नहीं हो रही थी, ये एड अप एज अ होल की बात हो रही होती है। सो thank you so much for your time, okay, so I hope you get understand the concept that we had done it now, okay? Thank you so much.